You can ask your first. अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? जी जी अफनान, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ सकते हो। जी जी। सवाल ये है कि आप एक हमें पर्पज भी पता लग जाता है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव तज़किया नफ्स करना है एक मुस्लिम का, लेकिन मोटिवेट भी आप कर देते हैं साहिल भाई, लेकिन वे क्या होगा, किस जरिए से हम लोग क्या क्या करके हम उस पे पहुंच सकते हैं, इंडिविजुअल तज़किया नफ्स पे और कलेक्टिव तज़किया नफ्स पे। यानी कि आप मोटिवेट भी कर देते हैं, आप आइडेंटिटी भी बता देते हैं कि एक मुस्लिम आइडेंटिटी, लेकिन किस तरह चलना है और क्या इल्म हासिल करना है और किस तरह उस तक पहुंच सकते हैं, इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव। और इसी में एडिशन है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए क्या निज़ाम कायम हो सकता है? Okay. First of all, Assalamu alaikum, everyone. There is no such thing as a collective tazkiyah nafs I mean, per se. I mean, a group is a sum of a lot of individuals. And as Umar Khattab once said to Abu Ubaidah bin Jarrah, and Abu Ubaidah bin Jarrah actually asked for some reinforcement during a war with the Romans. Umar Khattab clearly told Abu Ubaidah that I'm not sending you a person, a single person, because you should know the rule that whichever army is less in the number of sins will win by the end of the day, no matter who's fighting with who. So it's not about collective tazkiyah nafs. There is no such thing. Cleansing is only done as an individual, and even if there is a collectivism in Islam, it does not really mean that you know. Once the group is going to come together, all of a sudden some sort of a cleansing is going to happen to an individual just because he's part of a because he just entered a group. When we say collectivism, we actually mean leadership. We actually mean some person is going to be accountable for the tazkiyah of every individual under him. It doesn't really matter. Anything else doesn't really matter. So one thing's for sure, uh, you have to do the tazkiyah nafs. But is there going to be a person in the plan who's going to be like, yeah, you know what? Today I just got tazkiyah. There is no tazkiyah that can be actually, well, if you could say that, that means you didn't even start the tazkiyah. The humility itself is the very core of tazkiyah. So it's not going to, there's not going to be a day where a Muslim is going to be like, yeah, you know what, I've done it, I've achieved it. Uh, so there is no end to it. It's a never ending journey till your eyes actually uh, flows with you know the permanent sleep of death. And so this is not going to be there's no curriculum for Tazkiya per se that today I'm on the last chapter or something. So there's going to be what, I'm sorry. Yes, yes, go on. Someone did mute them. Oh, okay. So when it comes down to Muslim identity and then what's the first next step? First of all, the next step is charity begins at home. You actually have to start with your own family, and then you make a cluster. Um, God's hand is on the Jama'ah. That's the direct hadith. You have to create the Jama'ah. Now, there are many people who are actually making clusters, who have had made clusters. I mean, you can see the name of organizations or groups or tanzeems or, Jamaats claiming to have a certain goal. And, a regular individual, no matter where he is as a Muslim, he actually gets a certain feeling of dismay that for 60 years, 100 years, 40 years, that Jama'ah has actually not been able to achieve anything. But it comes down to the same thing of Umar Khattab. In those very Jama'ahs, people were actually chasing the motive, but as an individual and their own families, they were not actually cleansing their own selves and their own families. And that's the next step. You name any Jama'ah, and you're going to audit that individual, any individual,
any given individual from that Jama'at. There'll be a 2%, maybe 3% of people who are actually trying to live it out. Rest of the people are just there for the for the the very fact that they have good intent at best, and in most cases, even the good intent is not there. They're just there for the for the fashion of it. Um, they just like themselves to be a part of some sort of a group, and that's where the tazkiyah actually comes in from. So when it comes down to leadership, it's not just the tazkiyah of yourself; it's the tazkiyah of every individual under you. You have to go through a training program, put them through a training program, and this is something which is missing in any and every Jamaat, and not just Muslims. I'm talking about uh, even non-Muslim groups and clusters as well, and they're actually true to the core of whatever purpose that they're actually trying to achieve in. As much as the leadership actually keeps giving them the recall to the purpose, that they actually everybody the lowest common denominator, even the lowest common denominator actually goes close to the purpose. But if they don't, or they're not clear about their own purpose, or they're not giving enough recall to the lowest common denominator, the movement just stops or dies on its own death. And that's actually what's happening to every Muslim cluster. No matter wherever it is, even in Arab or in the West, or even in the subcontinent. Uh, the subcontinent clusters are actually suffering from a lot more syndromes than anywhere else, because we actually have clusters which are against some Muslim clusters. That does not really happen in other parts of the world. So that's the problem where as I see it, Allah of course, of how you actually put the formula in. If your own son and daughter and your wife and your husband or your brothers are not benefiting from your own cleansing, then you're not even cleansed to begin with. You're not supposed to be in any Jama'at. You're a cancer to any Jama'at that you're going to join. But if you're not actually, um, holding on your own, if you cannot hold your own fort, how can you actually hold the fort of Islam? And this is a problem. I mean, I'm not saying that, everybody's gonna be in the same zone as you are inside your house. What I'm saying is the momentum has to be in the same direction. I mean, there's going to be exceptions. There's going to be some house in which you're going to be the only one. But you were trying way more on your own house than anyone else. Nobody can work. Yeah, okay, but you were trying way more for your own house. There's going to be some households where the father is not going to be in the game, but the rest of the mother and sons and daughters are going to be, moving towards that the overall goal of Jama'ah in Islam. Okay, yeah, that happens. But were they trying on their father? Of course, they were dying to try it. Now they were dying in their attempts to get their father on board. Even, you know, the son of Nuh alayhi salam did not really join the club. So yeah, okay, there's going to be an exception. But was he a part of your diagram? Of course, he was a top part of your diagram. He just didn't really succumb to the rationale that you actually kept on giving more, or Allah subhanahu wa ta'ala did not, shift his heart. So, but that's pretty much the answer to your question. Charity begins at home. You actually cling on to your own households. Every prophet has done that, and every sane man after the Prophet alayhi salam, has done that as well. So it's the way basic matrix works. The basic rights of every human being actually are secondary to your own household, especially when it comes down to saving them from the hellfire. Jazakallah, Sahil bhai. And you can actually see in Muslims that, especially youth, they're really involved in some sort of a game outside their house, and they're really well intended, but they're not well directed if they're not actually involving their own household. Actually, they're very rigid in their own household. Their own households are actually repulsed by their Islam, their version of Islam. They're very aggressive. They have a frown on their face, and they're pretty cranky and grumpy, and they got the least amount of ikhlaq in their own house, and they got a very very well established akhlaq in the Jama'ah, and they're pretty
I mean, they're great people when you look at them outside the house, but their own house is not benefiting. I mean, they have their own justification. You know what? I'm I love my folks so much, and they're not listening to the word of Allah, and that's why I feel for them, and I get so agitated, and I'm frustrated for them, and I just am trying to give up on them now because I've tried so much. I mean, you you didn't really get the game to begin with if you didn't know where the priority was to be set. Jazakallah, Sahil bhai. Awais, you can ask the next. अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। So, अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि देयर आर सर्टेन पीपल इन आवर सोसाइटी लाइक जिनके अंदर एक सेंस होती है, ऑब्जर्वेटरी सेंस होती है कि मीन्स कि उनकी एक इंट्यूशन होती है कि वो ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी को और सोसाइटल इश्यूज पे गौर करते हैं। उनके अंदर एक स्पार्क होती है, तो ये स्पार्क जो होती है ये इनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाती है अगर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस स्पार्क का होना मीन्स कि पहले ये शर्त है कि ये स्पार्क उनके अंदर होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, उनके अंदर ये स्पार्क नहीं होती। मीन्स कि अगर मैं अपने इर्द-गिर्द सर्कल में देखूँ तो 40 प्लस 50 प्लस ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने आज तक ना कभी सोसाइटल इश्यूज़ पे गौर किया, ना कभी उनको रिलीजन से रिलेट करने की कोशिश की है। तो मीन्स कि उनके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी स्पार्क ही नहीं है कि वो गौर-व-फ़िक्र भी करें। तो इनके लिए फिर क्या हल हो सकता है? मीन्स कि इनका ही कसूर है कि ये ऐसे हैं, या फिर कभी इन्हें स्पार्क मिली भी होगी, इन्होंने कभी उस पे ध्यान नहीं दिया होगा। spark का मतलब क्या? What do you mean by spark? Means the spark to visual to observe means the spark to observe societal issues and relate them, and finding why these all matters happening in our society, and what's the solution, and how can we relate them with the religion, finding the right religion, etc. Okay, I get the meaning of what you mean by spark. You mean the analytical skill. So, so what's the question now? द क्वेश्चन इज के मीन्स के सर्टेन पीपल में ये इंट्यूशन होती है, उनके अंदर ये एक चीज़ मौजूद होती है कि वो गौर व फिक्र करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि वो गौर व फिक्र करते हैं Yeah, कि समझ रहा हूँ। आगे बताएं। वो सवाल क्या है? जी जी, वो सवाल ये है कि जिनके अंदर होती है वो तो इसको आगे बढ़ाते हैं, गौर व फिक्र जब करते हैं वो अपने अंदर इस चीज़ को, एबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ मौजूद ही नहीं है। तो उनके लिए No. That's a good question. No, that's not true. Every human being is born with that spark that you're actually talking about. They just need a totally different trigger. You know what I'm saying? We are born on the fitrah of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala's fitrah is actually based on empathy and justice. That's a basic need. And that's not just it, by the way. And this spark thing that you're saying, that also is a part and parcel of this signature of Allah subhanahu wa ta'ala. So what you are actually looking at is a little more what's the word? Word here. Yeah, you're actually passing a little too harsh of a judgment, or too quick to be. You're too quick on the judgment about these people. A lot of people just don't know how to show that agony or anguish when they look at the whole world, and their worldview is a little more on the what's the word, laid back side of things. Even though they actually feel the same pain, but they just don't know how to manifest it or show it, and they just are a little too subtle about the expression. And there are other people who are maybe even though they have less of that spark, but they have a lot more enunciation of that expression. And that's when we see, oh my God, kitna mukhlis aadmi, kya sincere. I mean, this man is like all about Islam, and this guy is just like, he just cannot handle evil in this planet, even though he's just expressing it a little too loudly. Otherwise, if you look at his daily routine, he's very off the grid. And a lot of people who just not even, apparently bothered by what the whole system of, whatever's going on in the planet, they're actually pretty, well established in Islam in their own lives. So you can't just, I mean, to answer your question simply, you'll have to introduce a lot more triggers to let people
express whatever their pain points are regarding, because there is no human being that can not be bothered by injustice. I mean, that's not possible. That's the make of a human being. Animals cannot be. Cats and dogs cannot be, settled in the system of injustice. They're gonna start barking or crying, uh, or fighting, literally. So when human beings are not doing that, that doesn't mean that they're not in the phylum Animalia anymore. I mean, it's not possible. It's not scientifically not possible. It's philosophically not possible. Well, in a lot of ways, it's intellectually not possible. So if you don't see it, you're not applying the Dawa properly. You're not presenting the whole your worldview to them properly. If you can present it to them properly, they'll actually shift their own prism. A lot more light's gonna flow to their brain, and they'll be like, "Oh yeah, yeah, I didn't see it like that, but I knew how you know evil is superseding good in just about every aspect of this planet now." So it's not that they don't have it. We just don't know how to look at it when it comes down to their behavior. That's why Hillman and Burdabadi, Hilm, Hilm, Hilm. That's the key here. You gotta be a little more forgiving, and so that you won't pass judgments, and you gotta be a lot more empathetic, so that you can see that, yeah, you know what, a lot of things uh, are expressed differently by every individual. We cannot expect Xerox copies of our own selves, especially in terms of emotionality of things. So, and as an academic, I'm telling you, a lot of people have a lot of different ways of showing their aggression, and people just go quiet. And his own twin brother, identical twin, is going to be crying out loud on the same condition of the house. You know what I'm saying? So you can't just expect everyone to have that same sort of behavioral expression, and then expect others to replicate it as well at the same time. It's not how it works. There's good in every human being waiting to come out. You just need to know how to tap into it. Yeah, I'm done here. Jazakallah, Sahil bhai. We'll move into next. Aksa, you can unmute yourself and ask the next question. अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरा अपने से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आई एम 21 एंड आई हैव रियलाइज कि मुझे अपने स्किल्स पे, नॉलेज पे और अपने विजन पे और पर्पस ऑफ लाइफ पे काम करना है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू अचीव माय शॉर्ट टर्म गोल्स और there's a feeling of exhaustion and I fear that I might lose the spirit. How to overcome this and make it work? two things. Thank you. First and foremost, goals are a begotten child of a vision that you have. You cannot make goals unless you have a very clear vision of what you want to be and where you want to. I mean, what is the problem that you're trying to solve for the planet? Unless you can put that problem on your dressing table and look at it every morning when you wake up, you don't even have a vision. You cannot make goals. Otherwise, you're just making wish lists. Okay, so make a very clear vision, and where that vision primarily is different for different people, because different people feel differently with even in the same given environment. Two people are going to be crying about totally different things. It's all about the chemistry, and that chemistry is all water, and that chemistry actually makes different equations in different human beings. Just like our fingerprints, everybody's chemistry makes accept a different equation, even if they're put in the same tank. That water is going to react to their body differently. That's the beauty of a human being. There's no human beings that's going to feel the same way, or think of the same things, or even if they do these two things, they're going to have so much more indifference in how they perceived all of this, even though the same guy with him is going to be in the same depth of water, same situation, same parents, but he's going to be looking at things differently. And as soon as you can see the versatility of a human
mind, you'll be amazed. You'll be like mind boggled. It's like how can two identical twins have a totally different chemistry, even if they grew up in the same household, same environment. So um, I mean, understand you need to make a vision for your own self because you're feeling this planet differently. Nobody can feel the planet the way Aksa is feeling it because I'm not Aksa, nobody else is Aksa. We don't. I mean, it takes a trillion to the power of trillion factors to make a human being the way he or she is. And at a certain age, oh my God, I can't even, and we can't do the math in this. It's such a grand equation of experience and uh, What if I'm the feeling emotions. difficulty in recognizing my vision also? Well, then you got to put it down on paper, and then you're gonna keep redoing it every other month, every other quarter, every even week, every other week. But that vision has to be driven through a certain problem that you felt by living in this planet, and that's Okay. when you're going to reverse engineer a lot of goals. Then you'll need a certain set of knowledge. That's your goal, the curriculum of all of this to achieve a capability or competence to solve that problem, right? Whatever problem was bothering you. You need certain skills other than knowledge. Another grading system. You're going to actually pass through all the grades to make that skill. I mean, to perfect that skill, to achieve that vision, right? And same goes for the resources that you have to collect, to achieve that vision. What is that vision? That vision is your own attempt to solve a certain problem in this mind. Okay. Thank you so much. Thank you, Aksha. Jazakallah, Aksa. Hisham, you can unmute yourself and ask. Hisham, can you hear me? Assalamu alaikum. Uh, I'm just walking on my way. Sorry for that. सर मेरा सवाल ये था कि can you give me 5 more minutes and can I ask after the That's all next right. That's all right. Usama, you can unmute yourself and ask the next question. अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। Waalaikumsalam. साहिल भाई मतलब मैंने अभी तक आपकी जितनी भी वीडियोस हैं शुरू से लेके एंड तक आपके सिंपल आर्ग्यूमेंट में वो मैंने ऑलमोस्ट सभी देखी है। आपसे पहले भी मैं डॉक्टर इसरार और इनको राजा ज़ियाउल हक यूथ क्लब वालों को सुनता रहता था। यूथ क्लब वालों के पेज से ही आपका पता लगा। तो मेन जो आपकी जो क्लियरिटी आपने मतलब अभी मुझे दी है, तो उसके अंदर एक तो पैसों वाला कॉन्सेप्ट एंड सेकंड अम्मी अबू वाला कॉन्सेप्ट के इस्लाम जो मतलब अम्मी अबू सिखा रहे हैं, वो मैंने वो सारी वीडियोस आपकी जो सारी थॉट है अपनी लाइफ पे कंपेयर करके देखी। फॉर एग्जांपल के एक अम्मी अबू 1 घंटा हमें कुरान की क्लासेस में भेज रहे हैं, सेकंड में ही खुद अम्मी मुझे डांस कंपटीशन में लेके जा रही हैं और वहाँ तालियां बजा रही हैं। उधर हमें तर्जुमा पढ़ाया जा रहा है कि लड़कियों को ना देखो और अपनी निगाहें नीचे रखो, कुरान की आयत। और वहीं पे जाके 16-17 साल की मेरी एज थी, तो ये सब उधर से अपनी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा। फर्स्ट क्वेश्चन तो मतलब ये है कि अब इस वक्त इस मतलब अभी 22 मेरी एज है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और आपके ये मखदूदी साहब के स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हूँ, रिफा यूनिवर्सिटी में ही। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कल्चर एज कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटी तो सही है, लेकिन जब से इस्लाम की तरफ आने लगा हूँ तो थोड़े बहुत पेरेंट्स भी अब ये समझते हैं कि गलती कर दी ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज के कि मतलब थोड़ा वो बन गया मौलवी टाइप मुला टाइप। तो थोड़ा बहुत डर लगता है कि पेरेंट्स को किस तरीके से मतलब डील करें या कोई बदतमीजी ना हो जाए, ये इस तरह कुछ ना हो जाए। और अपनी जो आगे नस्ल या फैमिली चलानी है, अभी भी अनमैरिड हूँ मैं, लेकिन आगे किस तरह लेके चलना है ये। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये चीज़ें दूसरे जो आपने बताया कि आगे लोगों को रोकना है कि और मैं खुद इस वक्त IEEE का प्रेसिडेंट हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में और ये सब एक्टिविटीज़ पैसों के ऊपर करता है। मैंने बताया आपको कि आपकी वीडियो देख के ये फिलॉसफी ऑफ नीड एंड ग्रीड ऑफ मनी वाली फिलॉसफी इस्लाम की जो है
वो समझ आई, लेकिन जब से ये मैं भी अभी ज़ूम सेशंस और इन चीज़ों के ऊपर जो ना जब बोलने लगा हूँ, पहले मैं करता था डिजिटल मार्केटिंग, पैसे किस तरह कमाते हैं, फ्रीलांसिंग, और वो अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन टॉक जब मैंने ये इस्लाम की तरफ की है थोड़ी, तो ऑडियंस ज़ाहिर सी बात है लूज़ भी हुई है और गेन भी हुई है मेरी ऑडियंस, जो अपने सर्कल के होते हैं, जो जिनको इंटरेस्ट होता है। अब जैसे आपने, मेरा मेन सवाल दूसरा ये है कि किस तरह से अब डायरेक्शन ले, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, रिफाइंड आपके मगदूदी साहब के स्टूडेंट्स की है, यूं समझे जमात इस्लामी वालों की, इधर थोड़ा माहौल और लड़के उस तरह के हैं कि ये चीज़ें समझें। अगर आपसे रिक्वेस्ट भी है, मैं आराम से अरेंज करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ, अगर आप आ सकें इधर थोड़ी डायरेक्शन इस मैं भी आपकी वीडियोस देख के मतलब आप यही चीज़ें सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह अगर एक बार आप आएंगे तो ये सर्कल और भी लड़कों का शायद बन जाए, दोबारा आपको आने की जरूरत ना पड़े, जिस तरह आप वीडियोस में भी कह रहे हैं कि किस शहर हम में ही आप? आगे ये चीज करें। थैंक यू। हाँ, किस शहर में? इस्लामाबाद, ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, I-14 कैंपस। ये तो आप तो जब मर्जी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट, कल आ जाऊंगा। That's how simple this is. You don't have to be, looking for certain formalities. It's the job upon every Muslim. Okay, ओके इंशाल्लाह। don't worry about it. जब आपको पता हो कि when you need me to come in, just tell me, I'll be there. इंशाल्लाह सर, वो कांटेक्ट नंबर मतलब किस तरह फॉर्मल तरीके से आपसे कांटेक्ट करें? और हो गया आपको मेरा कांटेक्ट? फॉर्मल क्या होता है? आपने कह दिया, मैंने आने, मुझे टाइम बताया कब आऊँ। फॉर्मल क्या होता है? इंशाल्लाह सर, अभी बताएं। नहीं नहीं, अभी बताएं कब आऊँ। फॉर्मल क्या, आप मेरे और आप बात कर रहे हैं, बताएं कब आना है रिफॉर्म में मैंने। हम इंशाल्लाह सर 3 हफ्ते बाद सर कंफर्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। Why 3 weeks? सर असल में इशू ये है कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और प्रेसिडेंट हूँ, वो फिर कंफर्म और इनका प्रोसीजर जो होता है बड़ा कि प्रेसिडेंट आप हैं तो हॉल बुक प्रोसीजर क्या, क्या मतलब? आप प्रेसिडेंट हैं, आप मिस्टर प्रेसिडेंट, लेट्स मेक अ डिसीजन। करना। सर स्टूडेंट प्रेसिडेंट हूँ, कोई यूनिवर्सिटी का तो नहीं है असली। स्टूडेंट प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा पावर होती है, तो क्या आपने, मैंने कोई आपकी फैकल्टी से बात नहीं करनी, मैं तो स्टूडेंट से बात करनी है। यू okay, you know जी what, you know your university, you know your faculty, your people better. 3 weeks, okay, let's lock the date. Okay, 3 weeks inshallah. इंशाल्लाह सर, 3 वीक इंशाल्लाह। I mean, I'm a little disappointed कि प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट बॉडी मुझे कह रहा है कि मैं एकदम नहीं करवा सकता, 3 हफ्ते तो मुझे लगेंगे। I mean, what are you gonna do, call them from Karachi or everywhere? 3 हफ्ते क्यों लगेंगे? आपकी यूनिवर्सिटी तो ओपन है। You should have given me सर a timeline in hours. सर ओके सर, 1 वीक बात कर लेते हैं अगर आपको इशू नहीं है तो। इतनी जल्दी आपने 2 वीक्स कम कर दिए, तो मतलब आपने शुरू क्यों किया था 3 week? नो सर, ये You मतलब know what, ज्यादा I'm चक्कर kidding, I'm kidding. Listen, ज्यादा listen, चक्कर you know लगा लो, you're कोई going. बात नहीं। Yeah, whenever you tell me, यस I'll be there inshallah. Okay, what do you need from me? आप मुझे बताएं, आपको आप मतलब आपने आपका मेरे से कांटेक्ट हो गया। जी Tell me, सर। how are you going to follow up with me? You do not, I mean, you're not going to come on Clubhouse and follow up with me, right? Actually you can, we're going to do this twice a week, right? Just say it. इंशाल्लाह सर, Yeah. आप सर, मेरा मोटिव ये है Inshallah, कि inshallah, जी we will. इंशाल्लाह सर। सर Usama, you can leave me a जी message on Clubhouse. Inshallah, we'll figure it out and we'll make it happen. Inshallah, next week. इंशाल्लाह जी। Okay, आपका नाम क्या था? आपका नाम क्या? Usama. उसामा अली मंगी। उसामा, सर उसामा, मैं सेंस जब इस्लाम की बारी आती है ना तो जरा जल्दी मिला करें। Okay? जी And you gotta, जी जी सर yeah, इंशाल्लाह। when you get the message, तो आपको जल्दी होनी जी चाहिए। I mean, 3 weeks is like, जी कोई पिकनिक में जा रहा हूँ ना मैं किसी जगह पे, स्कूल ट्रिप पे कॉल, तो तब मुझे 3 weeks का टाइम दें। अल्लाह की बारी आ रही है फिर 6 हफ्ते, 3 हफ्ते क्यों ले रहे हैं आप? नहीं सर, इंशाल्लाह कोशिश कर, मैं पूरी 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 कोशिश करता हूँ कि अभी इसी मतलब वीक में ही हो जाए, 1 वीक के अंदर ही हो जाए आपका कंफर्म। आपको पता है मुझे जीकी के स्टूडेंट्स पता है कहाँ पे बुलाते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटी, तो आप यूनिवर्सिटी के बाहर मिल लेते हैं। 200 300 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे होते हैं ओवर अ कप जी ऑफ टी, जी खो खो जी पे। एंड आई गो देयर, इट्स 2 hours, 2.5 hours, 1.5 hour, क्या 2 घंटे की ड्राइव है मेरे घर से। आई गो देयर बिकॉज स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी इन, you know सर। saying थैंक यू सो मच this. सर। I just सर somehow असल I just जी don't see that thirst in you. जी सर, असल में No, रीफा में हमारे आपकी सर्कल। प्यास मुझे इतनी नजर नहीं जी आई। जी जी सर। प्यास लगाएं जरा, शाबाश।
जी सर, आपकी आवाज़ थोड़ी सर कट रही है। चलें, कोई बात नहीं। आप ना जब भी जी आपको लगे कि we can जी do जी this, you tell me, I'll be there, inshallah. इंशाल्लाह सर। Keep सर them असल alive. में जी सर, असल में मोटिव आपको बुलाने का ये है कि यहाँ पे लड़के इस तरह के I, हैं कि वो भी काम I करना get, चाह रहे हैं I आगे, get that. तो थोड़ा Yeah, I get डायरेक्शन that. अगर इसीलिए प्लीज। तो कहा है। जी जी जी, थोड़ा नहीं, इंशाल्लाह एक स्टेप करके इकट्ठा लेके चलेंगे। Don't worry about it. इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच उसामा। शाम, यू रेडी टू आस्क द क्वेश्चन? तो आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं अपनी शॉप बंद करके जा रहा था तो रास्ते में तो इट वाज बिट डिफिकल्ट टू टॉक। एनीवे, सर मेरा क्वेश्चन पहला, तो आपका मैंने प्रोग्राम्स देखे और सुने हैं कब्र के हवाले से। तो मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि हम मुसलमान हैं, हमें तो कब्र में दफना दिया जाता है, लेकिन जिस तरह हिंदू हैं और क्रिमेशंस जो नॉन मुस्लिम्स करते हैं, वो जो हमें बताया जाता है कि कब्र के में एक जन्नत का वो खिड़की खोल दी जाएगी और दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो कैसे मैं समझूं कि वो क्या रूहानी स्पिरिचुअली उनको भी इस तरह होगा, क्योंकि उनकी तो कोई कब्र नहीं है, उनकी तो कोई ग्रेव नहीं है। हाउ कैन दे बी अफेक्टेड बाय दैट? और दूसरा छोटा सा मेरी पर्सनल कंफ्यूजन थी सर, वो ये थी कि हदीस के बारे में आप कहते हैं कि हदीस को जरूर उसको भी कुरान के साथ साथ उसको पढ़ें और उसको समझें और उसकी तालीम हासिल करें। सर मेरे एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आपको पसंद ना आए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादा टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सदीक के साथ, उमर बिन खत्ताब के साथ, इनके साथ गुजारा है, लेकिन रवायात में अबू हुरैरा जिनकी सिर्फ 2.5 साल पौने 3 साल रसूलुल्लाह के साथ रफाकत है, उनके साथ अहादीस उनसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है और उनसे हैं इनकी जिनका टाइम पीरियड बहुत कम है रसूलुल्लाह के साथ वक्त गुजारने में। तो मुझे वो कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, अगर आप उसको भी थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कर दें। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। हम्म। अबू बकर सिद्दीक का तो ऑफिशियल, मतलब उनकी अपनी हदीस बड़ी क्लियर है कि उन्होंने अपनी तमाम तर रिकॉर्डिंग्स जितनी भी थी ना हदीस की, I mean, he's one of those people who used to record, then he burnt it कि मेरे से अगर कोई गलती का इस्तेमाल हो गया तो उम्मत को, मतलब he knew what his place was in the hierarchy of competence in the minds of ummah, so he didn't want to take that chance, so he burnt all of his records. Big loss, very big loss, but you know that's what he did, because he didn't want to take any chance कि कोई एक राई बराबर भी एरर आ गया ना तो उम्मत इधर से उधर हो जाएगी। But that's the kind of man he was. इस तरह के स्टैंडर्ड ही चाहिए होती है उम्मत को। That's why he was Abu Bakr. रही बात अबू हुरैरा की, तो अबू हुरैरा's job was to record hadith. His job, that was his job. एक बंदे की शादी होती है, बीवी उसके ऊपर किताब लिखती है, लोग कहते हैं और बीवी तो बहुत बाद में आई थी, उसकी बेटी ने, उसके उसके भाइयों ने और उसके अब्बू ने क्यों नहीं किताब लिखी? I mean, it doesn't matter who came in later or first. Whoever wrote that book, जिसने भी किताब लिखी है वो बताएगा कि मैंने क्यों लिखी है। उससे पहले हर बंदे ने किताब क्यों नहीं लिखी, दैट्स द क्वेश्चन यू जस्ट आस्क्ड मी। तालिब बिन अबी तालिब बचपन से थे, तो तालिब बिन अबी तालिब ने सारी हदीसें क्यों नहीं लिखी? That's not what he was doing. Abu Huraira's job was to actually record every single thing. And not just that, ये 2.5 3 साल, he used to go back in time with Nabi Islam's memory, like उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था। Nabi Islam का अबू हुरैरा के साथ ताल्लुक ये था, रिकॉर्डर का। So obviously he's going to get the most amount of hadith, because he was called the Daftare Rasul. Daftare Rasul means he was the person who used to just write every single, I mean, that was something, that's all he did. नबी इस्लाम के सामने बैठ के उन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ वो किया, ट्रांजैक्शन ऑफ हिस्ट्री। अब सोच लें कि अगर अबू बकर सिद्दीकी का आर्ग्यूमेंट कोई लेके आए तो मैं उसको बस यही कहता होता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक की बेटी ने 3200 अहादीस दी हमें। So you think Abu Bakr Siddiq couldn't have given us at least 3 times more? Of course he did. He could have. So सिर्फ आगे 3200 हदीस आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बात कर रहा हूँ। आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास से 3200 हदीस आई है। So अली बिन अबी तालिब के पास से तो 32,000 आनी चाहिए थी। You know what I'm saying? But that's something that, you know, they knew, this is something that they're recording. So the only real question is कि हर सहाबी हर वक्त हदीसें क्यों नहीं लिखता होता था? Well, that's not a good question to ask, because that's not a normal and natural question to ask.
आपकी अपनी लाइफ में भी हर बंदा आपके घर का, आपके बारे में आपकी हिस्ट्री क्यों नहीं लिख रहा होता? इट्स नॉट द फैक्ट दैट नबी अलैहिस्सलाम से तो हर एक को हर वक्त हवा ने लिखवाना, हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा था कि जब भी मुझे देखो हर चीज लिखना शुरू कर दिया करो। दैट्स नॉट समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, राइट? सो ये तो एहसान अजीम है उन साहबा का कि जिन्होंने वाकई में लिखा है, बट दैट डजंट मैटर कि जिन्होंने नहीं लिखा ना उसके लिए उन्होंने गुनाह किया, होगा। सो इसलिए आपको अलग अलग रैंडम नेम्स मिलते हैं, कोई लीनियर सिक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल नाम नहीं आता कि चूंकि खतीजा सबसे पहली थी, हजरत अली उनके बाद थे, हजरत जैद उनके बाद थे। ये मैं क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ जैसे हुए हैं। फिर अबू बकर सिद्दीक उनके बाद थे, फिर अनस उनके बाद थे, फिर जैद उनके बाद थे, जैद बिन असलम, और उसके बाद सईद बिन जैद थे उनके बाद थे। फिर who else? I mean, there were so many sequential names. Umar Khattab, the 41st Sabi है. Okay. तो I mean, you can do the math on कि पहले से फिर उन 40 साहबी की बात करते हैं जो उमर खत्ताब से पहले हैं, उनमें से एक की भी नाम से हदीस नहीं आ रही। अली बिन अबी तालिब से फिर काफी सारी हदीस है, बट दोज आर फ्रॉम द latter days. So it's not about पहले कौन था तो उसकी ज्यादा हदीस है क्यों नहीं, it's about whoever recorded whenever he recorded. ओके, जरूरत इजाद की माँ होती है, तो अली बिन अबी तालिब ने जरूरत के मुताबिक काफी सारी हदीस बाद में लिखवाई भी है। ठीक है सर, थैंक यू। Right? दूसरा सर, मैं Yeah. कब्र के हवाले से जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, काइंडली उसका। Oh yeah. हाँ देखें कबर, याद रखिएगा हर चीज अपनी जेनेसिस की, मतलब कैसे बताऊं आपको, द होल लाइफ साइकिल ऑफ एनी एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, उस लाइफ साइकिल के मुताबिक हर चीज अपने आप को जमीन पे सेटल करते करते नीचे डेप्थ के अंदर अब दफन हो रही है, चाहे ना चाहे। मुसलमान का जिस्म हो या कोई दरख्त हो, जब वो गिरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन में सेटल हो जाता है। चाहे हिंदुओं की क्रिमेशन हो रही हो या कहीं जल गए हो या राख बन गए हो, गंगा की तह में चले गए हो, दे गोइंग टू गो डाउन। नाउ एक पूरी हदीस है हिंदुओं की, आपने बात की थी क्रिमेशन पे, फिरौनों की बात की थी, हदीस ही उसके ऊपर है। उस वक्त तो कोई हिंदू जलाता भी नहीं था। मेरे सामने एक बंदे की मिसाल ही ऐसे बताई कि इसने कहा कि मुझे दफनाना मत, मुझे आग लगा देना, और मेरी राख को दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाना, जहां जहां भी शहर में मुल्क में, और राख को अलग अलग जगह पे फेंक देना। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर उसकी राख इकट्ठी की, हदीस में है, और फिर उसको रिक्रिएट किया। ठीक है, और फिर अल्लाह ने कहा ये तूने क्या किया, ये तू क्या समझता था कि मैं तुझे बना नहीं सकता? तो नबी के सामने शाह फरमाई इसी हदीस में कि फिर उसने अल्लाह से जवाब दिया कि या अल्लाह, आ, मुझे पता था कि क्रिएट कर सकता है, मसला ये था कि मैं कब्र के अजाब से इतना डरता था। आई जस्ट डिड नॉट वांट आंसर टू यू। मुझे उस डर से ना मैंने अपने बच्चों से कहा था कि यार किस तरीके से ये अजाब मेरे पे ना आए। आई मीन इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ बिलीफ, इट्स अ मैटर ऑफ तज़किया दैट ही वाज गोइंग थ्रू। नबी साहब ने फिर शाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुस्कुराए उसकी इस बात पे, अल्लाह ताला स्माइल्ड on whatever he replied, and Allah Ta'ala forgave him because of the taqwa that he had. So किस हदीस से इस्तेदलाल करके क्या मुसलमान भी अपने आप को जलाएं? नो, वी डोंट डू दैट, वी एक्चुअली bury our dead because of the direct order of Nabi Alaihi Salam. ठीक है, so there you go. Hadith itself explains कि they will be recreated inside wherever they're going to be spread out. Now let's talk about those people जिनको यर्न्स के अंदर बंद करके रखा हुआ, अपने अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को अपने अपने लिविंग रूम्स में जला जलू के रखा हुआ उन्होंने। उनके साथ क्या होगा? क्या उनके कब्र का अजाब होगा? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा होगा। वेरेवर वेरेवर अल्लाह ताला इज गोइंग टू रिक्रिएट देम। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अल्लाह ताला ने एक्चुअली इस सवाल का जवाब कुरान पाक में डायरेक्टली दिया हुआ है कि ये लोग कहते हैं कि एक दफा हम हड्डियां ही हो गए, सब कुछ हो गया, तो हम दोबारा कैसे बनाए जाएंगे? अब इसको क्रिएटेड लोगों के ऊपर भी अप्लाई करें। अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे कह दो कि सूरज और चांद और सितारे बनाना ज्यादा मुश्किल काम था, तुम जैसे इंसान बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। मैंने पहली दफा बनाया तो मैं दूसरी दफा भी बना लूंगा तुम। तो अल्लाह ताला ने जीरो से बनाया था, हमें नल से बनाया था। जीरो तो फिर कोई एक फिगर होता है, नल से हमें बना के दुनिया में भेजा, तो दोबारा से बना देंगे कि चल इधर आ। तू क्या समझता था कि तुझे किसी मर्तबान में बंद कर देगा तेरे
शुक्ला साहब अगर मर्तबा ने बंद करके आपको अपने लिविंग रूम में सजा देंगे तो तू क्या, तो तेरे पे अजाब नहीं आएगा कब्र का? वो तो आएगा. So it's not a big rocket science when it comes down to, you know, मैं आपको सिर्फ हदीस इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी तो प्रेसिडेंस भी शामिल है, इस चीज की तो प्रेसिडेंस हमारे पास हमारे अपने लिटरेचर के अंदर है. मगर फिलोसफी के अंदर तो हमें पता है कि अल्लाह ताला ने कैसे हजरत उजैर को दोबारा से डिकम्पोज करके रिकम्पोज किया, और फिर उनके सामने उनके गधे को नहीं किया, ताकि उनको पता हो गया है ये तो जीरो पे लेके जाते हैं अल्लाह ताला, फिर वापस बना देते हैं, पता ही नहीं चलता अल्लाह ताला के हाथ कौन सी कोई देरी से मेरी है. And there are other examples as well. I'm thinking I've actually driven the nail through. तो आपको पता चल गया होगा कि कबर itself is a dimension. उस dimension में जाने के लिए तो जिस्म की तो जरूरत भी नहीं है. मैं तो अल्लाह ताला ने एक सुन्नत अपनी रखी हुई है कि हम जिस्म के थ्रू हम कबर के अंदर वाला अजाब जो है फील करते हैं. यौम तबद्दलुल अर्द गैरुल अर्द, अल्लाह ताला ने कहा उस दिन तो कोई और ही जमीन होगी जिस दिन मैं क़यामत खड़ी करूंगा. तो वो वाली डिमेंशन में निकलेंगे हम यहाँ से जाके. कब्र में भी यही है, नबी अलैहिस्सलाम ने शाप में कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग या दोजख के गढ़ों में से एक गड़ा है. इसका मतलब है कि as soon as we enter the grave we exit somewhere else right away. I mean, I'm not saying we do, I'm just saying we can. So अल्लाह को कोई रोक टोक तो नहीं इसी डिमेंशन में भी अजाब दे रहे हो, मगर लगता नहीं है. बिकॉज अली बिन अबी तालिब के पास, उमर बिन खत्ताब के पास एक यहूदी आया अपने चाचा की और बाप की खोपड़ियां लेके. कहता मैंने कब्र शिफ्ट करनी थी, निकाल ली इनकी खोपड़ियां मैंने निकाली हैं. आप लोग कहते हैं कि आ, हमें आग लगी हुई होगी. किधर आग? उमर बिन खत्ताब ने अली बिन अबी तालिब को देखा, या अबुल हसन आंसर दिस मैन. और अली बिन अबी तालिब ने कहा इधर आ, तुझे आग दिखाऊं. और अली बिन अबी तालिब ने फिर 2 पत्थर उठाए, उन्होंने कहा आग नजर आई? किसी से नहीं. फिर अली बिन अबी तालिब ने पत्थरों को जोर से रगड़ा, एक दूसरे पे मारा, चिंगारियां निकली. तो उसमें कहा कि हाँ जी अब आग नजर आ गई. तो अली बिन अबी तालिब ने कहा हाँ तो ऐसी तेरे बाप की खोपड़ी में आग लगी हुई तुझे नजर नहीं आ रही, ये इसके अंदर है, ये किसी और ही डिमेंशन की लगती है आग. सो it's a totally different way of looking at कब्र और उसका अजाब. it's not here. वरना हमने काफी सारी कब्रें खोद दी. हर रोज दुनिया के हर कब्रिस्तान को जब रिफ्रेश किया जाता है तो उसमें तो आगे नहीं नजर आते, उसमें तो दोजख के खड्डे नजर नहीं आते. तो वो किधर आती इसमें दोजख का खड्डा जो कि इस्लामाबाद कराची के कब्रिस्तानों को रिफ्रेश करते हुए, क्योंकि कब्रें दोबारा से रिफ्रेश की जाती है ना, आपको पता होगा इस बात का. तो खाली हिंदुओं के क्रीमेशन छोड़े, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी आग नजर नहीं आती हमें. So why are we saying that, you know what, it is, they're burning in hell? Of course they're burning in hell. My prophet says they're burning in hell, they're burning in hell. That's the end of the story. Where is that hell? Oh, well, where did they come from? Where do we all come from? We come from a totally different dimension. And that's something where we settle the meaning of, whatever is going to happen or is being done upon our dead. एंड इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जिन्नों के लिए भी कहा ये तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देखते थे. हेंस डिमेंशन. गौर से इस बात को आप समझिएगा, ये तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इनको नहीं देख सकते. ओके, वी गेट दैट. सो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट जिन इन अनदर डिमेंशन? बिकॉज अल्लाह ताला के नबी अस्सलाम ने कहा मुर्दों को कब्रिस्तान में सलाम करो, ये तुम्हारा सलाम सुन सकते हैं, तुम इनका जवाब नहीं सुन सकते. व्हाई कैंट वी जस्ट से दैट? ये एग्जैक्टली बात हुई है जिन्नों वाली. टोटली डिफरेंट डिमेंशन में काम हो रहा है. सामने ही पड़ी हुई है कब्र में बंदा लेटा हुआ है, आपका सलाम कैसे सुन सकता है? ऑफ कोर्स ये तुम्हें वहां से सुन सकते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं सुन सकते. यू अंडरस्टैंड? सो इट्स अ टोटली डिफरेंट डिमेंशन. जिन्नों के ऊपर हमें यकीन आ रहा था क्योंकि खूबसूरत लड़कियों पे जिन चढ़े हुए होते हैं हमारे इलाकों में, हमें देखे होते हैं पाकिस्तान में. तो यहाँ पे भी मुर्दों में भी वो वाली डिमेंशनल कॉन्सेप्ट लगाए, उनके ऊपर भी अजाब चढ़ा होता है, वो नजर नहीं आ रहा होता. Yeah, I'm done here. Jazakallah Sahil bhai. Thank you for such an informational answer. Or you can unmute yourself and ask the next question. अस्सलाम वालेकुम. साहिल भाई, मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ. मैं कोशिश कर रही थी कि आपसे 1-to-1 सेशन ले सकूँ. सो अभी उसका Hello? मुझे फंड नहीं हो सका पूरा, लेकिन क्वाइट पर्सनल बहुत सी चीज़ें हैं. लेकिन फर्स्ट थिंग Yeah, I इज़, can't hear him कैन यू हियर मी? or her.
Can you hear me? Yeah, well, very meek. बहुत कम हो रहा है. I can't hear you properly though. Assalamu alaikum. Hello. Alaikum salam. Yes. जी. Okay. Yes. Yes. So actually, I live in England. So it's been 16 years I'm married, और मेरे पास कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, तो मैं अभी आपसे पर्सनल भी लेना चाह रही थी सेशन का, वो नहीं बना. आवाज आ रही? आ रही है. पब्लिक में अच्छा. पर्सनल क्वेश्चन मत कीजिएगा. जी जी, नहीं पर्सनल नहीं. सो दूसरी बात ये कि मेरे बेटी के कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे अब मेरे पाकिस्तान की मेरी लॉजिक्स थी, तो कुछ इतना इस्लाम के बारे में जो बुक्स में पढ़ा वही था. यहाँ पे बच्चे लॉजिक्स मांगते हैं हर क्वेश्चन का. तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर पब्लिक में हम नमाज में औरत लीड नहीं कर सकती, तो क्या घर में जब मैं बच्चों को नमाज पढ़ाती हूँ, क्या मैं लीड कर सकती हूँ नमाज? उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा. इनफैक्ट कि मतलब भाई भी है, तो क्या मैं लीड कर सकती हूँ नमाज? अगर किसी भी बंदे को सूरह फातिहा तक नहीं आती ना, पीछे जी घर पे सूरह जी फातिहा तक नहीं आती, तो वो आपका डायरेक्ट महरम है. जी. आपने इस सवाल किसी मुफ्ती साहब से पूछना है. आप मुझसे बड़ी क्लोज आ गई थी फतवा लेते लेते. I cannot नहीं, comment on एक्चुअली this. मेरा प्रॉब्लम, मेरी शादी जो हुई तो उनको कोई इतना इसका है नहीं, वो इस्लाम से, वो उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम अपना करो जो तुम्हारा है, मुझे नहीं फोर्स करो. तो मैंने अपने बच्चों को जो भी पढ़ाया, मैंने खुद से उनको थोड़ा बहुत नमाज सिखाई. उनको बेटा, किनको आप बार बार वो प्रोनाउन उनको यूज मेरे करिए. हस्बैंड उनका कौन है? मेरे हस्बैंड. ओह, जी. अच्छा. उनको सूरह फातिहा नहीं आती? आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी आता. आपके सो हस्बैंड को सूरह फातिहा नहीं आती? आई Are you saying that? यस, आई थिंक सो. वेल, फिर नमाज में जमात को छोटा इशू है आपका. आपका बड़ा इशू ये है कि मेरा सबसे बहुत पहले ये वाला इशू सॉल्व करें. मेरे बहुत से इश्यूज हैं, मैं कह नहीं सकती, Yeah, मजबूर I'm हूँ sure. I'm sure. सुने. Listen, I'm not going to talk जी. about your. I understand, but that's a very small problem कि आई जमात नो. कौन करा रहा है. द Bigger प्रॉब्लम problem is वाज कि कि जी, मैं जब शादी हुई तो मेरे ससुर ने भी कहा कि ना हमारे घर कोई मौलवी आएगा, ना बच्चे बाहर जाएंगे, तो जो पढ़ाना है मैंने खुद पढ़ाना है. सो जो कुछ मैंने पढ़ा या लर्न किया अल्लाह की ये मदद सुसर से ने कहा की, या आपने कहा ये मेरे ससुर ने कहा. कि जो तो पढ़ाना है मैंने खुद पढ़ाना है? जो पढ़ाना है मैं एज अ मदर मैं खुद पढ़ाऊंगी इन्हें. ये ठीक आपके है. मैं ससुर ने कहा? जी जी, मतलब वो चाहते हैं आप दीन पढ़ाएं हमें आके. उनको नहीं, अपने बच्चों को मैं सिखाऊं. So he wanted you to teach deen to your kids, यस, इवन कुरान. even though he didn't. No, nobody will do it, because that's the thing is they just said nobody will come to our house, and neither anybody go to other people's house to read Quran. Okay, okay. What's your question? I'm sorry. You and I should talk one on one. Yeah, that's what I'm saying. There's big Yeah. different questions. Yeah, The well, thing we is, will. But yeah, the thing what's is, your question? my Yeah. daughter asked me, because when we were talking that when we're reading Eid namaz, right? And I taught my 10 years old namaz, and he was leading that moment namaz for Eid namaz at home because of lockdown, Yeah. because of COVID, right? And then my Your daughter asked, 10-year-old was leading the prayer. 10 years old, yes, I taught Yeah. him to do it. And then No, my it's okay. daughter, It's a good thing. yeah, my daughter, who is 12 years old, she asked me, Mom, why can't I lead the prayer? Right? So then I told her that it's the reason, like, why mehram, na mehram, it's in the public. But she asked me when we are reading, because sometimes when in Maghrib prayer, I ask them, come and read with me. And then I ask my son to come and lead, and we all follow him. So she asked me, Mummy, because he's my brother, and we are all like, I've got girls, 3 girls as well. So she said, why can't I lead? Because I know my brother and I know you. So what is the answer I should give it to my daughter? Because this is something, sometimes I get stuck and I don't have the answers. Like she asked me that why we should wear dupatta to read Quran. So I said it's respect as well. So certain answers for this prayer one is, why can't she read prayer inside the house if me and my son and my daughters are reading namaz? Can she lead? You know what I mean? Well, if your son can. Listen, you're asking me for a fatwa right now. I'm not going to give a fatwa. Okay, so I just believe what I'm पहली doing बात तो ये it. बताएं, listen to me. Are you Pakistani? Yes, I am. Okay, so you're probably more of a Hanafi then.
आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं किसी फ़िरकों का नहीं, बस मुझे जो अभी भी जो मुझे कुछ हनफी समझ फिरका आता नहीं नहीं है, है, हनफी को फिरके का नाम नहीं है, हनफी मुझे कुछ फिरके नहीं का इन नाम है। चीज़ों का भी नहीं पता, अपने अब्बू से भी कभी पूछूँ तो मुझे नहीं, थोड़ी बहुत बस जो सच है वो फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ और उसे ढूँढने की कोशिश एंड करती हूँ। हेंस हनफी आप फिर, वो क्या ओके। होता है? मुझे तो भी नहीं पता, नाम बताइएगा मैं लिख के जिसने सर्च आपको करती सच बताया है ना उसको हनीफा कहते हैं ना, पाकिस्तानियों को जिसने सच बताया। हूँ। अब I'm मुझे sorry, I don't know, I'm just oversimplifying this. Listen, I मुझे am going to give you an answer and you are not going to get the same answer from anyone else you know, so you're going to get confused. आई ओके, कांट आपको मैं अटेंड बताता हूँ मैं फतवा क्यों नहीं देता। ओके, जी, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ मैं फतवा नहीं देता, और जब ओके, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ मैं फतवा दे देता हूँ। मतलब जी, इसलिए नहीं कि मैंने को नौज़ बिल्ला अपना फतवा देना, मैं किसी का दिया हुआ फतवा आगे रिपीट कर देता हूँ। I'm not a mufti. आई डोंट माइंड, मुझे Yeah, well, अल्लाह ताला no, से no, दुआ but this करती is हूँ कि not वो a this. समझ आ जाए। जी, सॉरी। Yeah, well, in this case, in या in your case, I think your son should lead the prayer. And माय if your सन शुड, daughter says, oh, "Why can't I lead the prayer?" Tell her any girl या who is praying in public should नहीं, not be looked at by anyone, who, especially a boy. Okay, a बट boy. इनसाइड द हाउस, A big. इफ ओनली इनसाइड द I'm हाउस। talking about a boy. That doesn't matter who's that boy. Okay. Now, ओके, uh, this is part and parcel of being a girl, as her chastity and her sanctity of her own self ओके, should be in seclusion. Okay. Now, I'm not saying a girl cannot lead the prayer if it in with her younger siblings, or जी, because they're dono bachche hain. I mean, both of them are जी, not even supposed to be, जी, जी, I mean, but उसके तो ऊपर तो फर्ज भी नहीं हुई लड़की के ऊपर अभी। जी, पर जैद ने इमामत कराई थी जब वो 8 साल के थे, और पीछे सारी औरतें खड़ी हुई थी। ठीक है, इतने छोटे बच्चे थे कि उनका चोगा भी नहीं बना था, तो ही यूज्ड टू जस्ट बी वेयरिंग अ कमीज। सही, सो आई एम जस्ट सेइंग कि so we have precedents of both the cases। खातून को भी अल्लाह नबी अलैहि सलाम ने कह दिया इस्मा को कि आप जमात करा लें, बिकॉज वो एक बुजुर्ग थे, उनको नहीं आती थी सूरह फातिहा, तो नबी इस्लाम ने जी, फिर खातून से कह दिया, वो उनके अपने बुजुर्ग थे, ऑफकोर्स उनके घर के अपने बुजुर्ग थे। So she led the prayer, but that's just one-off incidents. Okay, that's the ओके, one-off incidents. Now, when I formulate an opinion, it's going to come up from Shafi'i. His fatwa is very clear about this. So if I tell you that, then that's the only thing of Shafi'i you'll be following in your life, and everything else in your life you'll be following from Hanifa naturally, because you talk to Pakistani women and men, right? So all of a sudden you'll be like, "ये क्या बात हुई? यहाँ पे सारा कुछ ही नहीं मतलब मेरा ऐसे, यूनिफॉर्म तरीके से चल रहा है, और अचानक नमाज की बारी आती है, तो मैंने साहिल अदीम साहब से पूछा, तो उन्होंने कह दिया हाँ चले आप जमात करा ले, बच्ची बच्ची अपने छोटे भाई की जमात करा ले बेशक। नहीं मैंने एक्चुअली द रीज़न मैंने इज़, इसलिए वो कहा ही नहीं कुछ। जी नहीं, मैं आपकी बात समझती हूँ। द रीज़न इज़ कि बहुत अरसे से एक तो इधर हूँ, दूसरा वहाँ पे भी इस्लाम का कुछ ऐसा कोई हमें, क्योंकि क़ारी साहब ने पढ़ाया एंड दैट्स इट। जो कुछ आपने लर्न किया, आपने अपने माहौल से लर्न किया। जब इधर आई तो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये मुझे खुद से अपने I get it, I बच्चों को get it. सिखाना Yeah, है। no, जी। that's not just a story. By the way, this is just about every Pakistani woman. हाँ जी, हाँ जी। Just about. बिल्कुल Yeah, एग्ज़ैक्टली। 90% of all Pakistani women are going through this. और मोस्टली Well, even रिस्पॉन्सिबिलिटी men. इसलिए है क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने अपने बच्चों को कुछ दे के जाना है, एट लीस्ट वो Yeah, कुछ well, कर you're doing the सकें। right thing, alhamdulillah. Yeah, teach them how to pray, teach them what the Quran is, and make them कुरान want. भी उनको I mean, पढ़ाना है और ट्रांसलेशन से करवाती हूँ, ताकि वो उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा-थोड़ा पता चलता रहे कि क्या है। एक आपने बात की थी सीरत की, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, कोई ऑथेंटिक बुक इंग्लिश में आप रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं ऑर्डर कर सकूँ और खुद रीड कर सकूँ और अपने बच्चों को? बिकॉज़ यहाँ पे बच्चों को नबी पाक के बारे में बताते हुए भी दे गो फॉर लॉजिक्स, एंड मैं स्कूल जाते हुए इनको थोड़ी-थोड़ी बातें बता देती हूँ, कोई स्टोरी बता देती हूँ, जस्ट क्योंकि वन टू वन मेरा और मेरे बच्चों का एक एक सिलसिला होता है स्कूल जाते हुए और स्कूल से आते हुए। I think you should work a little too hard on your husband before you work on your kid. I mean, उनको छोड़े मत ही इज़ बच्चों को। नॉट डूइंग इट, ही इज़ एक्चुअली, द थिंग इज़ इट्स गेटिंग रियली मेस्ड अप एट द मोमेंट। Okay, no, yeah. Please don't give me details. So, या but you आई नो, need, your job is to actually work on your husband. Otherwise, बच्चों के ऊपर जितना मर्जी काम करेंगे जाया हो जाएगा। मैंने ज़ाया हो जाया नहीं कि जाएगा। अल्लाह क्या जाया हो जाएगा। आई डोंट अल्लाह क्या रब नहीं। को पता है जी, रब को मेरा पता है मतलब क्या है हो कि रहा है जी। वो जी, ओहो, सुनो, जी, जाया हो जाएगा, पक्की बात है जाया हो जाएगा, मगर अल्लाह क्या नहीं जाया होगा, बिकॉज आपके बच्चों के जो अब्बा है ना, वो उनको जी। किसी और डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करेंगे, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी, इसका ये मतलब है। उसमें मेरा बस नहीं है फ़िलहाल।
Yeah, well, you gotta keep trying. Otherwise, you'll have to isolate your kids from yours, but I'm sorry. All right. I'll try to get one-to-one session, and then inshallah I'll ask you some other questions as well. But thank you very much for. Well, no, you can talk to him with the kid. Okay, oh, one-to-one I, session with me. yes, with Oh, you, because okay. I Yeah, went on but the you gotta have a lot WhatsApp, of and one-to-one with your husband. no, that's the problem. But actually, I spoke to one of your, I think, source code person, and she I sent me, understand, ma'am. yes. आपका नाम क्या है? मेरा नाम राबिया. Yeah. राबिया, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ. अल्लाह ताला आपको आसानियों पे आसानियां दे. I know what your बहुत problem is. I प्लीज mean, दुआ it's a big कीजिएगा. problem. मैं बहुत ज्यादा Yeah. मुश्किल में एट द मोमेंट. प्लीज आप जरूर हेल्प Yeah, कीजिए. apparently so. But याद रखिए, जितनी आप मुश्किल में होती है ना, उतना अल्लाह ताला की मदद ज्यादा आती है. ठीक है, याद रखना. Just तो keep ये your intensity है, सबर का, बच्चों को बचाएं. जी बस सबर का हुक्म फिलहाल है कि अगर मैंने घर बचाना है तो मुझे सबर करना है. हाँ, मैं आपको इतना बस कह सकती हूँ. Okay, sure. मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं I cannot आई नो, give मैं you. मेरे पास Yeah, अभी, ठीक है. क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं भेज सकती हूँ जैसे सेशन का, लेकिन व्हाट्सएप आई कैन गो टू पोस्ट ऑफिस एंड इंशाल्लाह I'll sort it out, but then I'll speak to you more. मैं आपको कुछ टीचर्स के लिंक्स भेज दूंगा अभी. जी जी, आप क्लासेस शुरू करें बच्चों की. ठीक है, बहुत दीन शुक्रिया. की. और मुझे अपने लिए भी, Don't worry. सुकून के लिए, ये कुछ क्लासेस, कुछ अल्लाह की तरफ का ये बेहतरी की. सुकून is the least of your priority right now. You need to learn. Okay, सुकून सुकून आता रहेगा, ना भी आया खैर है. ठीक है, मुसलमान को खास सुकून में नहीं होता. फातिमा, हाँ क्या नाम जी, बताया था आपने? राबिया. राबिया. ये सुकून की तलाश जो है ना, ये जन्नत में करेंगे. दुनिया में मुसलमान को आग लगी रहती है हर वक्त, इतने मसले में. ठीक है. बहुत सही कह रहे, सही. या so don't worry. Inshallah, Allah Ta'ala को आसानी दे. I know what you mean. Let me try and get your kids sorted out, inshallah. एंड प्लीज दुआ कीजिएगा मेरे घर के लिए भी. बेहतरीन. आपकी इस टाइम आपकी दुआएं ज्यादा कबूल हो रही है. आप मैंने दुआ किएगा. ठीक है. अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, जो आपका मकसद है, और अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे जरूर. आपको भी. बहुत आमीन. शुक्रिया अल्लाह जी, ताला आपको आसानियां दे. आपके बहुत बच्चों को शुक्रिया. आसानियां दे. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया. Assalamu I'll speak alaikum. to you Thank you so inshallah. much, Rabia. Thank you. Ali, you can mute yourself and ask the question. Sahil bhai, we've got three people, so we'll have three questions and then we'll end up the session if that's okay with you. Yeah, go on, All please. right. जी अस्सलाम वालेकुम. शुड आई आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश, क्योंकि इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है, या वो उर्दू में? अली भाई, आप जो कंफर्टेबल हैं आप पूछ लें, फिर साहिल भाई will answer it in English hopefully. चलिए ठीक है, कोई इश्यूज नहीं. तो द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क वाज बेसिकली अबाउट उइगर राइट्स, बिकॉज जब मैंने इसका सेशन भी पढ़ा ना, नाम इसका जो टॉपिक है, क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आस्क्ड ऑन एनी अदर फोरम. तो ये काफ़ी अरसे से ना, अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जिनके साथ मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि वो काफ़ी इसके बारे में पर्टिकुलर है. मगर जो लोग बेसिकली इसको हेड कर रहे हैं ना, इस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट को, उनसे भी मैंने काफ़ी बात की है इसके हवाले से, और उन्होंने बेसिकली अपने कंट्री, क्योंकि उनका इस तरह लाइंड है, तो वो बड़ी कंफर्टेबली उधर काम कर रहे हैं. मगर उन्होंने हमें भी ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आप पाकिस्तान में, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं इसके ऊपर कोई काम ना करता. मगर वो इसको बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि कितना मतलब क्रूशल है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से भी. तो मेरे ख्याल से कि साहिल भाई, आपकी भी एक जियोपॉलिटिकल मतलब आपके व्यूज़ हैं स्ट्रॉन्ग. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अब जिस तरह जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, चाइना इधर आ रहा है, इतनी एक टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन रिजीम, और पाकिस्तान का जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उइगर मुस्लिम्स के साथ, उसको भी नहीं वो पूरा कर सक रहा. स्पेशली जो कुछ इधर आए थे, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो भी जो है वो वापस उनने भेज दिए. तो आपके ख्याल से इस वक्त हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए सबसे इफेक्टिव इसके खिलाफ? प्रोटेस्ट वगैरह, मतलब मैं वैसी, अगर आप कहें कि आइडियल एक क्या हमारा एक्शन होना चाहिए? देखिए, चाइना ने हांगकांग के साथ, चाइनीज ताइपे के साथ, ताइवान के साथ, इवन जापान के साथ, जो आइलैंड के साथ मसले उनके थे. एक्चुअली मैं इस वक्त चाइना में था जब इनके प्रोटेस्ट चल रहे थे उन आइलैंड पे. फिलीपींस में साउथ चाइना सी के ऊपर जो इनके इशू चल रहे थे.
चाइना ने फोर्थ तो नहीं एग्जिट की, बड़े इधर उधर के पंगे हुए, शोरिश हुई। यू थिंक व्हाट ताइवान अलग होता, हांगकांग अलग होता? इतनी कोई टोटलिटेरियन रिजीम नहीं है इनकी, है अपने लिए तो है, बट जैसे ही इनको बाहर जाके कुछ करना पड़ता है, so they actually have a lot more subtle strategy. I mean, that's kind of weird. Very, very eerie is the word in English. Very quiet they are when they are outside their own domain. Uh, I mean, we know Cold War में रशिया क्या कर रहा था? Very cold, very quiet, but लड़ाई चल रही थी. China is not fighting anybody. Sorry. बल्कि if anything, somehow ये तिब्बत के अंदर या कौन सी जगह जहाँ पे लद्दाख के अंदर इंडिया के साथ ही इनकी पिटाई, इंडिया की पिटाई की, वरना तो कभी भी नहीं। चाइना डिड नॉट डू एनीथिंग मच। सो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट सीपैक और चाइना में पाकिस्तान, यहाँ की पाकिस्तान में एंट्री होगी तो चाइना का इन्फ्लुएंस इतना आएगा। दे कुडंट इवन इन्फ्लुएंस हांगकांग फॉर गॉड्स सेक। आई मीन, सो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट चाइनीज इन्फ्लुएंस, स्पेशली इनकी फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान। However, that's not at all what your question actually is. Your question is about the Muslims in China, and that's the job which चाइना की जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी अपना फोर्टिफिकेशन है। वो अपने आप को अपने अंदर, उसमें उन्होंने आज तक किसी को एक्चुअली पिछले 48 के बाद से इन्वॉल्व होने नहीं दिया। विक्टोरिया के बाद से कोई चाइना के अंदर नहीं जा सका। विक्टोरिया भी हीरोइन लेके गई थी अंदर, तो वो भी नहीं गई थी, खाली हीरोइन सप्लाई करती थी उनको। तो you think Imran Khan has the, or Pakistani government can actually enter China by any means? No. Strategy को बनानी पड़ेगी. We'll have to do espionage through Chinese Muslims, and that's the only way to actually try and get something out of Uyghur Muslims. Otherwise, oh my God, इतना गंदा कैंसर पाकिस्तान है Uyghur Muslims के लिए। You know what I'm saying? मैं ना उधर उरमची गया हुआ था, तो you will be amazed उरमची में मैंने लोगों ने हमें उधर बुलाया था दावत के लिए। तो ये चाइना में उरमची, तो चाइनीज मुस्लिम्स, आई मीन देवर, तो वहाँ पे हलाल फूड तो मिलते नहीं, तो इट वाज लाइक ईद फॉर अस। तो 4-5 घरों में मैं खाना खाया, तो मैंने कुछ देखी तस्वीर उनके घरों में। तो लाइक व्हाट्स दिस गाय, आई मीन आई सीन दिस गाय समवेयर। मैंने समझा माओ ज़ेडुंग है, मगर जरा ब्राउन माओ ज़ेडुंग है। And they were laughing at us. I'm like, you don't know this guy? I'm like, I know something about this guy. I don't know who this is. क्योंकि मेरा दिमाग सोच नहीं सकता था, हालांकि इतना ज़्यादा लगता हो। उन्होंने बताया ना कि तुम्हारा वो ज़्यादा लगता है ना, like, why the hell are you carrying his picture on your wall for God's sake? And he said, because he's our hero. And I'm like, उरमची में ज़ियाउल हक हीरो है? ये तो पाकिस्तान में हीरो नहीं है, तुमने क्यों बनाया इसको? तो पता चला कि चाइनीज मुस्लिम्स को सऊदी अरब ने कोटा नहीं दिया हुआ था हज का, क्योंकि चाइना का कोटा था नहीं। तो पाकिस्तान में ज़ियाउल हक ने चाइनीज मुस्लिम्स के लिए कोटा साइन किया था कि वो पाकिस्तान के कोटे पे हज करेंगे। So all of those Urumqi Muslims used to do Hajj on Pakistani quota because of Zawlak. So they were, I mean, I'm giving you an example as to what Pakistan can or could have done at times when they had the chance. I'm not saying Zawlak was a hero or something. Allah को ही पता हो उसके कितने अमाल कबूल हुए हैं, कितना बड़े काम किए, कितने छोटे काम किए. I do not know. I was not there. I was too young. I was what, 5-year-old, and he died. I don't know, 10, 6-year-old. So you need to understand, China के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके उनकी एक सूबे के अंदर से मुसलमानों को बचाना असल में सिंकियांग के ऊपर लड़ाई करने की बराबर है। लिटरली ये वी हैव हुआ टू ओपन फायर ऑन देम। साहिल भाई, इसके ऊपर वाइस न्यूज की पूरी डॉक्यूमेंट्री है। कोई बंदा इधर मतलब उनको स्मगल कर रहा था कुछ पैसेजेस से, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सारे एक एक को वापस भेज दिया था। ये तो मैं आपको बता। नहीं तो मुझे कोई ताज्जुब तो नहीं है ये बात सुन के। तो शुक्र करे वापस भेज दिया। अगर पाकिस्तान आर्मी ने तो गोली चला दी तभी आई वुड बी सरप्राइज। दिस इज अ totally different geopolitical problem that we suffer from. Actually, we suffer from an Islamic problem. They suffer from a non-Islamic problem. Actually, let me just tell you something. They suffer from an Islamic problem. We suffer from a non-Islamic problem. This is something which is the problem for a regular Pakistani person like you and me. कि अब हम क्या करें? So Uyghur Muslims के लिए तो I told you espionage, and we can't even get them out of
their own province to another province now. अब मेरे पास वही डिटेल नहीं है जो कि कुछ चाइनीज ही मुझे जाके बताएगा कि वहां पे असल में किस किस लेवल तक कितनी इंसुलेशन की गई है उस कम्युनिटी की। हमें खबरें तो आती हैं, आखिरी मैंने कुछ चाइनीज की डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है, तो इतना तो पता है कि हाँ तबाही तो मचाई भी उन्होंने, मगर ये नहीं पता कि एक रेगुलर इंडिविजुअल को किस लेवल पे इंसुलेट किया गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता या क्या पता कर सकता हो। You know what I'm saying? तो जब अपने किसी भी पॉलिटिशियन से बात सुनते हैं तो कहते हैं उनका इंटरनल मसला है तो हम नहीं हाथ लगा सकते उसको। तो कश्मीर के ऊपर तुम जो कि तुम्हारा अपना मसला है, तुम उसको हाथ नहीं लगा सके तो चाइना वालों को क्या हाथ लगाओगे? So it's not a, I mean, I don't have any expectation. I hope you know what I'm talking about. There is no expectation from any Pakistani force to do anything about it. So बोस्निया में जब हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, मुझे बस वही याद आता है बोस्नियन मुस्लिम्स के लिए जो दुनिया के बाकी के मुसलमानों ने कोशिश की थी। बाय द एंड ऑफ द डे मोटा मोटा वही करना पड़ेगा, उसके अलावा चारा कोई है नहीं। वाला लालो। तो आपके ख्याल से कि मतलब एज सिटीजन्स या एज यूथ हम लोग ये एस्पियोनाज कर सकेंगे चाइना के थ्रू, मतलब आपके ख्याल से ये चाइना फीजिबल है किसी हद तक? मैं इस हद तक के जो कुछ निकाल सकते हैं निकाल लें, इवन मंगोलिया के थ्रू निकाल लें। आई डोंट नो, you gotta do something. I mean, can can this be solved? I don't have the brains to understand the solution because this is such an overwhelming problem for me कि चाइना के अंदर से चाइनीज को निकालना उनकी एक्चुअल उनकी विल के अगेंस्ट, तो लिटरली चाइना पाकिस्तान लड़ाई करने के बराबर है। तो पाकिस्तान तो नहीं करना, पाकिस्तानी ने करना है अगर किसी, तो फिर इसके अलावा कुछ चारा है नहीं। देयर इज नो वे। अब चाइनीज ने ऊपर से अपने आप को उस तरह भी तो आइसोलेट किया ना, कोई और बंदा जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या रहा है, बिकॉज दे डोंट इवन दे हैव सच अ कल्चरल लैंग्वेज बैरियर एज वेल। यही नॉर्वे से नॉर्वेजियन निकालना आसान है, चाइना से चाइनीज निकलवाना इतना आसान नहीं, बिकॉज दे दोज पीपल डोंट इवन स्पीक, आई मीन दे आर एलियंस टू अस, इतने आइसोलेटेड। आपका मतलब है कि उइगर मुस्लिम्स को हम निकालें या चाइनीज को ही निकालें जो उन पर मतलब जुल्म वगैरह करें? लेकिन स्वापिंग भी ना, इसराइल पैलेस्टाइन में पीपल स्वाप की स्ट्रेटजी थी ना कि आप बंदे स्वाप कर लो, अपने रेफ्यूजीज हमें दे दो, हमारे रेफ्यूजीज तुम ले लो। पता ना पीपल स्वापिंग चलती थी 60 से, अभी भी खैर वो पीपल स्वापिंग पे एक बात करें जो बीडीएस है ना फलस्तीन की। टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली इफ चाइना हैड सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेक समवेयर एल्स, तो उस स्टेक को लेवरेज बना के पीपल स्वापिंग की बात की जाए। जैसे तालिबान हमेशा आफिया सिद्दीकी को मांगते हैं ना, जब भी बात होती है ना नेगोशिएशन की, पहली पहली बार कहते हैं हमें आफिया सिद्दीकी दे दो, तुम अपने प्रिजनर ऑफ वॉर ले लो। तो इस तरीके से कोई गेम डाली जाए तो डाली जाए, वरना तो क्योंकि मुस्लिम्स का आई डोंट नो कि ये कोई सीपेक बड़े नहीं सिंबल्स लेवरेज हो सकती है? आप फिर पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए। ओ माय गॉड नो। नहीं तो अगर इसके खिलाफ मतलब अगर अवाम उठ जाए प्रोटेस्ट करे कि हम लोग नहीं इसको सीपेक होने देंगे और ये सारी चीजें, तो आपके ख्याल से उसका अच्छा कोई ओके, आगे चलें, ये जुमला पूरा करें। हम उठ गए हैं, हमने बांध करवा भी लिया, प्रेशर भी डाल दिया पाकिस्तानियों पे, गवर्नमेंट पे। आगे डिमांड क्या करेंगे हम, ये बताएं। कि उनके कंसंट्रेशन कैंप्स मतलब खत्म किए जाएं उइगर मुस्लिम्स के? ओ माय गॉड, तो वो कह देंगे ठीक है खत्म कर दिए फिर। ये भी बात थी। या पाकिस्तानी जो है ना, ये जो स्पेशली पावर में जो लोग हैं, इनकी सबसे वीक साइकोलॉजी दुनिया में किसी भी लीडरशिप की और स्टेट्समैन की इतनी वीक साइकोलॉजी नहीं, जितनी पाकिस्तानियों की वीक साइकोलॉजी है। ये वो लोग हैं जो असल में भी रातों को अपने बिस्तरों में जिन्नों और भूतों से डरते हैं। जिसने 8 साल का बच्चा नहीं डरता जिन्नों भूतों से, जो चीज है भी नहीं उससे भी डर रहे होते हैं, खुद ही जिन बनाया होता है उससे डर रहे होते हैं। इतनी वीक साइकोलॉजी के बंदे हमने स्टेट्समैन लगा दिए हैं। ओके, इनको तो चाइना जैसी चीज है तो इनको पता नहीं क्या क्या चीज का डर लगता होगा। क्योंकि कुछ लोग तो गए थे उधर दौरा करने, तो उन्होंने पता नहीं उन्होंने क्या उनको उधर दिखाया, वो कहते हैं इधर हमें तो कुछ नहीं नजर आया, इधर हम जिंजियांग में ही फिरते हैं। Yeah, I've seen that too. Yeah, so Chalo, thank you so I mean, much.
we'll just Yeah. जी जी साहिल भाई आप कंप्लीट कर लो. Maika will No, just I mean move on to another. this is all I mean I can say right now. I mean we need a lot more data from both the flanks. तब कहीं जाके not Pakistan का flank, the helping flank and the helper flank. डेटा के बगैर Understandable. सिर्फ इमोशंस ही इधर उधर हो रहे Understandable. Thank you so much. Abdullah, Alias, you can ask the next question. Please unmute yourself. ओके ओके मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल था साहिल भाई से कि माशाल्लाह आप फ़लसफ़े वगैरह पे स्टडी करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था आपके व्यूज़ के बारे में भी, क्योंकि हम मतलब अपने पर्सनल सेशंस में ये बातें वगैरह करते रहते हैं, तो आपका भी इनपुट चाहिए था कि हम एक आपको मालूम होगा कि एक डिवाइड रहा है इस्लामिक और वेस्ट भी इस डिवाइड के ऊपर बड़ा कलाम करता रहा है कि एक इस्लाम के अंदर मुतकल्लिमीन हम थियोलॉजियंस कहते हैं, जो 4 स्कूल्स हैं हमारे पास, शायरा, अशरीज़ जो है, मातुरीदी हैं, तो और मुअतज़िली हैं। ये एक हमारे पास एक स्कूल रहा है जिसके अंदर इमाम गज़ाली भी थे। एक हमारे पास ये स्कूल रहा है थियोलॉजियंस, मुतकल्लिमीन, और दूसरे पास हमारे पास फ़िलासफ़ा का स्कूल रहा है, जो कि जिसके अंदर इब्न सीना हैं, जैसे मुल्ला सत्रा हैं, अल्लामा तबातबाई हैं, सुहरवर्दी वगैरह हैं। तो और इमाम गज़ाली ने, जैसे आपको मालूम होगा, तहाफ़तुल फ़िलासफ़ा लिखी और उस पे क्रिटिक किया फ़िलासफ़ी को काफ़ी ज़्यादा, और फ़लासिफ़ा को कहा कि ये मतलब काफ़िर है, मुर्तद है। तो इसके इस इशू के ऊपर ये जो वेस्ट भी इसके बारे में मतलब काफ़ी आपने कलाम देखा ही होगा कि गज़ाली को भी क्रिटिक करते हैं और रिवर भी करते हैं, क्रिटिक भी करते हैं। तो इसके अंदर आप खुद किधर इधर स्टैंड करते हैं फ़िलासफ़ा मुतकल्लिमीन की डिवाइड के हैं अंदर? दैट्स राइट टू और जी, और अगर आप मुतकल्लिमीन मतलब अगर आप मुतकल्लिमीन को सपोर्ट करते हैं या मतलब उनसे मैं ज़्यादा अशराई टू सर आई एम अच्छा अ प्योर अच्छा, अशराई सही हो गया। तो मतलब आप इमाम गज़ाली से एग्री करते हैं, और अगर करते हैं तो इसकी थोड़ी मतलब पार्टली ना 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 थोड़ा सा आपने गजाली को पिवट क्यों रख दिया पिवट ओ नहीं गजाली इज नहीं नॉट द नहीं, सेंटर जी आप तो इसकी थोड़ी मतलब थोड़ा सा अगर आप इस पे कलाम करना चाहें तो आई डोंट थिंक दिस इज अ पब्लिक फोरम क्वेश्चन आधे से ज्यादा खराटों की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी पब्लिक फोरम से लेट्स जस्ट दिस इज नॉट समथिंग ओके आई विल टेल यू जी समथिंग आई विल कोई टेल यू मसला समथिंग ताकि आपका क्वेश्चन जो है ना केटर भी हो जाए फलसफे का जो लफ्ज है ना उसके उसका और उसका इस्तेमाल जो है उस लफ्ज का इस्तेमाल ये दो अलग चीजें हैं। मैं फलसफे की जो कोर है ना उसको कभी भी नहीं छेड़ता स्पेशली पब्लिक में तो नहीं छेड़ता वैसे ही मतलब बेसुध सी बात है यू ओनली टॉक अबाउट फिलोसफी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी जनरल पब्लिक आई एम विद इमाम गजाली के एज कैजुअल वर्ड ऐसे थ्रो अवे वर्ड नहीं है फिलोसफी लोगों को वैसे ही पागल कर दोगे बिकॉज फलसफा असल में यूनानियों ने एक की वर्ड के तौर पे डिस्क्रिप्शन के साथ अपने चारों पॉस्टुलेट के साथ बताया था ये है फिलोसफी और उसको इमाम गजाली ने ठीक कहा था कि इधर जाएगा इस्लाम अब ये हालात हो गए और अल्लाह के ऊपर तुमने नाउज बिल्ला वली जिरा करनी है और आके उसके अंदर से मतलब प्रूव भी अल्लाह ही करना है तुमने भाई एंड ऑफ द डे मुसलमान ने तो अल्लाह ही प्रूव करना है ना तो ही सेड कि अल्लाह पर जिरा करते हो और अल्लाह के अलावा कायनात को सपोज भी करवाते हो और फिर कहते हो अल्लाह ही प्रूव करना है तो फिर तो तुम अल्लाह के अलावा कायनात सपोज क्यों करवा रहे हो प्री सपोजिशन जो है ना ए प्रायरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी आइसोलेट्स द यूनिवर्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला अदरवाइज फिलोसफी एग्जिस्ट ही ना करे वो तो फिलोसफी को एक क्रिटिकल थिंकिंग की बेसिक सपोजिशन ये है कि ओके अच्छा अल्लाह ने कायनात बनाई तो ठीक है कायनात से अल्लाह प्रूव करते हैं कायनात के अंदर अल्लाह के साइंस होंगे तो एक सेकंड के लिए नाउज बिल्ला ये क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला को एक सेकंड के लिए कायनात से निकालो अब देखो कायनात में क्या है अब पता चलेगा तुम्हें कि अल्लाह ताला सृष्टि के अंदर कायनात को कैसे संभाल के बैठे हैं अब ये ग्रीक टेक्निक है एंड दैट्स अ वंडरफुल टेक्निक फॉर द ग्रीक ओके बट फॉर ए मुस्लिम हु एक्चुअली सपोजेस कि अल्लाह ताला गायब में मौजूद अल्लाह ने सब कुछ बताया मगर अल्लाह ताला खुद नजर नहीं आएंगे और ओके मैं अल्लाह को प्रूव करने के लिए फिर मैं अल्लाह को पहले डिसप्रूव करता हूँ आप खुद सोचें 12 साल का लड़का या लड़की उसको मैं इसकी ट्रेनिंग दूं ये थिंक आई लॉस्ट माय माइंड आई एम विद गजाली ऑन दिस वन अब आए और नीचे कि जब हम फिलोसफी को एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग बोलेंगे तो फिर मैं जाया 12 साल के बच्चे को भी बताऊंगा
description of everything में philosophy. I'm not using the word philosophy as a keyword used by the Greek or even Ghazali. Okay, अब वो लफ्ज नहीं है, philosophy pop culture में आ गया. And now when I say philosophy, I'm actually using it, borrowing it from the pop culture. I'm not borrowing it from the Greek. ना तो मैं कभी भी ना लफ्ज यूज करता philosophy का. I could have used the word reasoning. Yeah, reasoning was the best word I could actually come up. But when I say philosophy, I know what a child actually means philosophy, so I'm using it for him, especially for the atheistic mind or antagonists जो कि बैठे हुए हैं, skeptics जो कि पूछ रहे हैं, strugglers जो कि सोच रहे हैं, उनके लिए लफ्ज यूज कर रहा हूँ. It's a throwaway word. I hope you've heard this word on occasions where I'm not even discussing philosophy. I'm only discussing the cause and effect of things in my videos. मैंने म्यूट तो नहीं किया अपना. ना आपकी आवाज आ रही है. Tell me once you're done. Are you done? Yeah, I'm done. I'm just saying, don't treat my word of when I choose this word philosophy as how Ghazali was actually using it. Well, even though he was telling us not to use it, but the word he was using was a totally different word. Abdullah, you can ask the next question and we'll wrap it. थैंक यू तैयब. अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई. मेरा ये सवाल था कि आज जिधर कनाडा में नवंबर 9 है तो इकबाल डे है, अल्लामा इकबाल की बर्थ की डेट है, और आपकी मैंने वीडियो देखी थी अल्लामा इकबाल के ऊपर उबरमेंश के ऊपर, जो खुदी और उबरमेंश का जो कनेक्शन है. तो मेरा एक सवाल ये है कि थोड़ा सा अगर आप उसको एलैबोरेट कर दें, जो अल्लामा इकबाल ने बेखुदी और खुदी की बात की. और दूसरा ये है कि हम जब बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो एक पाकिस्तान में तो ये नैरेटिव है, बचपन से ये सुनते आए हैं कि अल्लामा इकबाल जो है वो ही वाज द फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने ख्वाब देखा. लेकिन जब आप अल्लामा इकबाल की खुद लिटरेचर पढ़ते हैं तो उन्होंने नेशनलिज्म को बहुत क्रिटिक भी किया है, क्योंकि उनका ये पर्सपेक्टिव था कि अगर नेशनलिज्म, एथियस्टिक नेशनलिज्म अगर होगी तो इंसान की आइडेंटिटी नेशनलिस्टिक हो जाएगी, मजहब से दूर हो जाएगी, और इवेंचुअली उसकी खुद ही जो है वो एक्चुअलाइज नहीं होगी. तो इस पे अगर जरा कमेंट कर सकें कि पाकिस्तान का जो आइडिया है, डज इट फिट विद दिस आर्किटाइप, द इकबालियन आर्किटाइप, एंड हाउ आर वी सपोज टू reconcile दिस पाकिस्तानी नेशनलिज्म विद an Islamic identity? Sure. Oh God. Okay, let's just talk about Khutbah al-Abad. Actually, let's talk about the gestalt concept of Iqbal. When we say Iqbal, we actually use the word Iqbal as a gestalt concept. इसका मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो कुछ इकबाल ने पहली क्लास 1 में भी जो किया था और जो आखिरी मरते दम तक लास्ट किताब लिख रहे थे, क्लास 1 ऑफ इकबाल, जब वो छोटे से बच्चे थे, या फिर जो पहली पोएम लिखी थी उनमें 7th क्लास के अंदर वो, और जो आखिरी पोएम लिखी थी बिफोर हिज डेथ, ये सब का सब इकबाल है? तो नहीं, ऐसा नहीं. ओके, we cannot treat his I mean, you have to treat Iqbal in a chronological manner and treat the part of Iqbal when he was actually politically active as his politics, and the later works of his poetry as his resonating wings of his poetry with his philosophy. फिर हम उसकी philosophy की book लेते हैं, so okay, let's treat that as much as we can as true Iqbal, because poetry is a linear concept. पता नहीं कब से लिखी थी कौन सी चीज और उस वक्त क्या सोच थी. जब तक किताब लिखी थी फिलोसफी के ऊपर, तब तक आप ओके, लेट्स जस्ट से ही वाज मैच्योर इनफ. अब रही बात 1931 की, तो 7 साल पहले मरने से उन्होंने खुद बाला बात दी. So I'm gonna say yeah, by that time Iqbal was whatever Iqbal was. Because Iqbal was not the last 7 years of Iqbal, right? At least the last 20 years of Iqbal, but should be Iqbal. Because he was politically active, it's all over the place. I'm talking about the globe. And so when he said कि फला 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 इलाके मुसलमानों की वो है अक्सरियत, इनको मिला के आप एक मुल्क बना दें,
He's not talking about the nation state at that time. He's talking about the two nation theory at that time. You have to understand that. He did not make a political state like Thailand and Burma. He made a, why I'm saying Thailand, Burma, because dono Buddhist हैं. Okay. He did not make Taiwan and China, dono communist, Buddhist. ठीक है. He did not make, you know, a, bifurcated geography. He bifurcated the demographic of India. That means it's not a national nation state concept. It's a Muslim versus it's a well, we call them nation, not the two nation theory, but the nationalistic philosophy and psychology is not about that. See, यहाँ पे भी लफ्ज मैच हो रहा है, असल में दोनों लफ्जों के मतलब अलग. नेशन स्टेट का मतलब दो अलग मजहब नहीं होते, या 50, 211 मजहब नहीं अलग अलग हुए हुए, मोटिव नहीं अलग अलग हुए हुए. सिंपल लकीरें खींची हुई नक्शे के ऊपर विंस्टन चर्चिल ने सारे मुल्क बना दिए मुसलमानों के. तो क्या वो नेशन स्टेट है? हाँ, इसी को नेशन स्टेट कहते हैं. तो क्या टू नेशन की बजाय 11 नेशन थ्योरी हो गई? इजिप्ट अलग हो गया तो अरब यमन अलग हो गया तो यूएई अलग हो गया? नो, दैट्स नॉट व्हाट नेशन टू नेशन थ्योरी का मतलब इसराइल फलस्तीन है. टू नेशन थ्योरी का मतलब हिंदू मुसलमान है. एंड दैट्स व्हाट इकबाल वाज सेइंग कि भाई इनको अलग नहीं करोगे तो मजहब नहीं प्रैक्टिस कर सकते. मजहब नहीं प्रैक्टिस कर सकते आप किसी और मुल्क की बिना. कॉन्स्टिट्यूशन बताए अमेरिका का लेके, इंग्लैंड से लेके, फ्रांस से लेके, कि वो ये वाला लफ्ज यूज करते हो कि इनको अलग ना किया तो ये अपना मजहब नहीं प्रैक्टिस कर सकते. नेशन स्टेट में ऐसी बात नहीं होती. सो पॉल वाज नॉट कंफ्यूज व्हेन ही वाज सेइंग कि ये इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है. ऑफ कोर्स ही न्यू इट. नेशनलिस्टिक philosophy and psychology is. He was just telling us कि भैया वासने हमें मुल्क खेलोगे ना तो हर मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन, और गेन्स अलग लॉसेस अलग हो जाएंगे, आइडेंटिटी कंफ्यूज हो जाएगी. मगर अगर आप कौम खेलोगे मुसलमानों की, तो मेरी अरब के ऊपर तो नहीं चलती, मगर गौरव के ऊपर हम चला सकते हैं कुछ. तो इस कौम को इधर से तो अलग करो ना. ठीक है, अफगानियों ईरानियों के साथ तो सब कुछ एक जैसा है हमारा, हिंदुओं के साथ हमारा कुछ एक जैसा नहीं है. इधर से लकीर लगानी पड़ेगी हमें. सो इन हिज ओन वर्ड्स, अगर नेशन स्टेट साइकोलॉजी भी अगर इंडिया में लगाई जा रही थी ना, तब भी हम मुस्लिम नेशनल कॉन्सेप्ट को ही प्रैक्टिस कर रहे थे. क्योंकि इन दिस केस ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बाउंड्री नहीं बता रहे थे, वो बता रहे थे हिंदू मुस्लिम बाउंड्री. तो बनना उन्होंने मुल्क ही था, वो भी बराबर मुल्क ही रहते, मगर लिटरली वाज लाइक इस कौम का मजहब इतना फर्क है हमारे से, इनके रिवाज अलग है, इनके खुदा अलग है, कि इधर हमें मुल्क भी बना लेंगे ना तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे होंगे. इसलिए कि कायदार ने कहा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद कुरान है, हमें किसी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है. ये मोहम्मद अजना का जुमला है. सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये दोनों चीजें हिंदुओं की वजह से एक जैसी लग रही है हमें. असल में दोनों अलग अलग चीजें हैं, नेशन स्टेट थ्योरी और टू नेशन थ्योरी. पर थ्योरी तो नहीं है टू नेशन, ना ही नेशन स्टेट थ्योरी तो दुनिया में अप्लाई हुआ हुआ लॉ इस वक्त. तो जियो पोलिटिकल व्यू में नजर भी आता है हमें. अब ईरान इराक 10 साल तक जंग लड़ते रहे. टू नेशन थ्योरी नहीं, नेशन तो एक ही है, मगर नेशन स्टेट या इट्स अ नेशन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट. पाकिस्तान इंडिया जंग नेशन स्टेट का मसला है? नो, बिल्कुल भी नहीं. दो कौमें लड़ी आपस में. जैसे इसराइल और फलस्तीन, दो अलग अलग कौमें लड़ रही. तो साहिल भाई, जिस तरह हम देखते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, या सऊदी अरब का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये भी तो टेक्निकली एक नेशन है, लेकिन ये लड़ रहे हैं. तो क्या आजकल की दुनिया में नेशन टेक्निकली स्टेट ये नेशन नहीं है ना, टेक्निकली ये नेशन नहीं है, वैसे हम इसको नेशन नहीं बोलते हैं. पाकिस्तान कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई कौम नहीं है. मगर इंडिया के परस्पेक्टिव से यह हाँ पाकिस्तानी कौम है भाई, क्योंकि तुम हिंदू और मुसलमान है. दैट्स हाउ इट. ये मोहम्मद जिन्ना और इकबाल की जुमले में अपने नहीं बोल रहा हूँ.
अब वो दोनों मौलवी थे नहीं थे, दोनों मौलवी नहीं थे, तो इसलिए यार तो मैं बोलूं तो मौलवी हो जाऊं, वो बोले तो क्या पॉलिटिक्स है, क्या लीडरशिप है, ये तो नहीं हो सकता ना। और तो हमारी आइडेंटिटी एज पाकिस्तानी, हमारी आइडेंटिटी एज मुसलमान रेकनसाइल हो सकती है? या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज कुरान, राइट। करारदाद मकासी दिया, मगर यू कैन नॉट गो अगेंस्ट कुरान, वेल ऑन पेपर एटलीस्ट, तो आइडेंटिटी कंफ्यूज तो नहीं होती। गिफ्ट है जज़ाकल्लाह पाकिस्तान, खालिद। वो बड़ा गिफ्ट है, बताता हूँ क्यों। ईरान में हो सकती है, अफगानिस्तान में भी हो सकती है, पाकिस्तान में सबसे कम प्रोबेबिलिटी है। भाई हमने बनाई कलमा, कलमे वालों को इकट्ठा करने के लिए मुल्क बनाया हुआ, हिंदुओं को इस साइड पे करना है, इस सेकंड के लिए, हिंदू बेशक ना भी वो करते हुए एग्जिस्ट। पाकिस्तान बना था कि हाँ नहीं मुसलमान अपना मजहब प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो यार पाकिस्तान में वो वाली तलवार न लटकाएं जो कि किसी और मुल्क के ऊपर नेशनलिज्म की तलवार लटकाते हैं। लटकाए जरूर, होनी भी चाहिए, हम, वो पड़ता होता है नेशनलिज्म, मगर पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन टू मेनी थिंग्स, बिकॉज इसराइल फलस्तीन के कॉन्सेप्ट से साफ समझ आ जाती है कि यहाँ पे भी यही, पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ काफी चीजों का इतलाक उसी तरीके से होता है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी। So, Sahil, you done? Oh yes sir, Thank last you so question. much. You want to Oh, take one more question? So I've turned off the hands uh, off, so no one can ask me a question now. So I think we'll just wrap it up here then. We can okay, keep it next time, inshallah. Jazakallah inshallah, everyone for coming, and Jazakallah Sahil Bhai. Inshallah, next time we'll take more questions and we'll try to come twice a week, barakallah. inshallah. And Jazakallah for everyone for coming. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.